Hi friends, welcome to Unacademy, India's largest online learning app. We provide you support for IIT JEE, then UPSC, MPSC, SSC exams, CBSE classes from 6 to 12 and NEET UG. So enroll with our Unacademy Plus subscription with flat 10% off discount and ace your final exams with Unacademy Plus subscription. So welcome to the class friends. Dear learners, I am Trupti Deshmukh. I have done Masters of Computer Engineering. I am teaching you with the subjects like programming in Python, C, C++, Java, Android application development, C Sharp and ASP.NET. So before moving the forward, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें. सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू सेशन. हाय फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि पाइथन एक्चुअली फ्लो कंट्रोल कैसे सपोर्ट करता है. सो उसके लिए क्या है, पाइथन में डिफरेंट फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी दीज स्टेटमेंट्स वन बाय वन. सो पहला स्टेटमेंट है उसका इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, अगर आपके प्रोग्राम में कोई कंडीशंस देनी है और अगर आपके प्रोग्राम में कोई कंपैरिजंस करने हैं तो जनरली उसके लिए हमको क्या करना है, ये इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना है. देन नेक्स्ट वन इज व्हाइल स्टेटमेंट. ओके, सो अगर आपको कोई कंडीशन देनी है या फिर अगर आपको कोई लूप रिपीटेडली रन करना है तो उसके लिए क्या है, व्हाइल स्टेटमेंट है. एंड थर्ड वन इज द फॉर लूप. First one is the conditional checking. If else, then while is going to do what? While is going to do the some kind of conditional checking. और वो क्या करेगा, एक ही चीज़ को रिपीटली रन करेगा जब तक वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है. और लास्टली फॉर लूप. ओके, सो फॉर लूप इज गोइंग टू गिव सम पर्टिकुलर रेंज और अगर वो रेंज आपकी सेटिस्फाई होती है तो वो लूप रन करेगा. ठीक है, सो वी विल सी दिस वन बाय वन. So first one statement is if else statement. Okay, so before moving forward to the actual program, we will try to find out the actual syntaxes of the statements. Okay, so if else का syntax देखेंगे पहले. देखिए, now we will see what is the syntax for if else. देखिए, if का syntax बहुत ही simple है. If is a keyword in the Python. And the next one, the condition using which we are going to identify whether the given statement is satisfying the given requirement condition or not. If condition, that is if the condition is true, then perform the statements. Okay, ये बहुत ही बेसिक if स्टेटमेंट का सिंटैक्स है. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, if में बहुत से टाइप्स भी आते हैं. if, then if else and nested if else. ओके, सो उसका भी सिंटैक्स हम लोग देखेंगे और डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद आवर प्रोग्राम. ओके, नाउ इफ कंडीशन इज satisfying, then some statements. And else means what? If this given condition is not true, that if this condition is not true, then it is going to execute else statement, that is go to else statement. And again else is having some statements. Okay, in this way the if else statement is going to be executed. Now what if, अगर क्या होगा जब एक बार हमारे पास ऐसी कंडीशंस हैं कि मोर देन वन और मोर देन टू है, तो उसके लिए भी हमारे पास पाइथन ने ऑलरेडी सोल्यूशन दिया हुआ है. तो फिर उसके लिए हमें क्या करना है, इफ द सेम सिंटैक्स इज हियर, इफ कंडीशन देन दिस स्टेटमेंट्स, देन हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ELIF कंडीशन and next one
statements and lastly else. देखिए इफ़ यू ऑब्जर्व दिस टू सिंटैक्सेस, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, इफ़ का सिंटैक्स पहले चेक कर लो आप। इफ़ में क्या दी है, हमने एक पर्टिकुलर कंडीशन दी है, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट्स रन होंगे, स्टेटमेंट्स अंडर दी इफ। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा, ये एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लाइकवाइज यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इस सिंटैक्स में क्या होता है, इफ़ condition is going to become true, then execute these statements. If this condition is not true, then we are going towards the next condition. That's why we are using this else if, that is called as ELIF. This is nothing but the else if in our Python. Okay, else if, condition, statements, and if there is one more condition, then you can also write one more again, else if, condition and its statements, right? अगर आपकी सारी की सारी कंडीशंस खत्म हो गई और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है तो लास्ट को क्या रहेगा, एल्स और उसके स्टेटमेंट्स। ओके, तो चलिए आज का हम पहला प्रोग्राम स्टार्ट कर देते हैं यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। ओके, आपको तो पता है कि पाइथन के प्रोग्राम्स कैसे रन करने हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स। दैट इज यू कैन यूज द ऑनलाइन पाइथन एडिटर और यू कैन हैव द इनबिल्ट आईडी ऑफ पाइथन, देन यू कैन यूज PyCharm, Anaconda और Jupyter based on your choice. Okay, so I will select now the online Python compiler. तो चलिए प्रोग्राम ओपन किया, शेल तो क्लियर है। अभी क्या करेंगे, हम डायरेक्टली प्रोग्राम लिखना टाइप करेंगे। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोग्राम, दैट इज प्रोग्राम टू फाइंड आउट whether given number is even और odd। ओके, यहाँ पर क्या करना है, हमें अब ऐसा प्रोग्राम लिखना है जहाँ पर अगर यूज़र ने एंट्री की वेदर गिवन नंबर इज इवन और नॉट, यूज़र हैव टू फाइंड इट, देन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट यूजिंग द पाइथन प्रोग्राम। अभी देखिए बेसिकली इवन नंबर का क्या लॉजिक होता है, अगर कोई नंबर अगर वो डिविजिबल बाय 2 है तो वो क्या हुआ, इवन हो, और अगर नहीं है तो वो नंबर ऑड हो गया। जैसे कि अभी ये नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये सब क्या हुए, हमारे इवन नंबर्स हो गए। और ऑड नंबर्स कौन से हुए, 1, 3, 5, 7, 11 एंड 9 एंड सो ऑन। ओके, सो अभी उसके लिए लॉजिक कैसे डेवलप करने का पड़ा, अभी हम तो डायरेक्टली लिख नहीं सकते, इफ़ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन राइट डाउन द आउटपुट एज द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एग्जैक्टली। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्टली यूजर से इनपुट ले लें। ठीक है, यूजर से इनपुट ले लेंगे, नंबर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर से इंटीजर नंबर एंटर करके ले रहे हैं। और हमें क्या करना है, अभी वी हैव टू फाइंड आउट वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। सो उसके लिए क्या लिखना है, इफ स्टेटमेंट। अभी इफ का सिंटैक्स लिख चुके हैं हम लोग। इफ क्या करना है हमें, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 मीन्स व्हाट, रिमाइंडर मस्ट बी दी 0। सो रिमाइंडर के लिए हमको क्या लगेगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगेगा। दैट इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट लाइक दिस, इफ num mod 2 is equals to 0। अगर नंबर का नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करके उसका जब अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या होता है, वो नंबर क्या होगा, इवन होगा, अदरवाइज दैट नंबर विल बी ऑड। ओके, सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स हियर, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, डबल 2 ऑपरेटर लिया है, दैट इज डबल 2 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्चुअली ये क्या होता है, this is nothing but the what, the relational operators. Okay, so Python is having some of the relational operators, that is equals to if the given value is equals to the another value, that is what, if number is equals to 0। Okay, so यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, we can say that we had done here some type of comparison। सो और भी इसके रिलेशन ऑपरेटर्स है, जैसे कि सपोज यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू
0, अगर नंबर 0 से बड़ा है या इक्वल्स टू 0 है। और हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, दैट इज नंबर इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, या ईदर नंबर इज 0 और ईदर नंबर इज लेस देन 0। देन वी आर हैविंग अनदर इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, यानी कि नंबर 0 से बड़ा ही होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और आई कैन से दैट नंबर इज लेस देन 0, दैट इज number must be what, negative, minus 1 2 3 and so on। और अगर हम दोनों की इक्वलिटी नहीं चाहिए, अगर सपोज यहाँ पर इफ नम मॉड 2 इज अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर नम मॉड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन मतलब वो नंबर क्या हुआ, ऑड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट रिलेशन ऑपरेटर्स इन पाइथन, यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। इफ नम मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0, तो चलिए देर किस बात के, हमें क्या करना है, नेक्स्ट लिखना है। अगर नम मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0 क्या करना है, हमें सिंपली प्रिंट कर देना है, क्या, द गिवन नंबर इज इवन। ओके, सो यहाँ पर एक बात हम लोग रह गई है, दैट इज व्हाट, कोलन। देखिए कोलन क्या करता है, आपके लूप को एक्चुअली स्टार्ट कर देता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए अभी क्या हो गया, हमारा कर्सर जो है वो एक टैप आगे चला गया, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ पाइथन, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज द इंडेंटेशन। पाइथन में क्या देता है, वो आपको बाय डिफॉल्ट इंडेंटेशंस मिल जाते हैं। सो अभी देखिए, अभी हम लोगों ने पहले क्या किया था, ठीक है, हमने यहाँ पर कमेंट भी नहीं डालते, डायरेक्टली एंटर कर देते हैं। क्या होता है, डायरेक्टली कर्सर नेक्स्ट लाइन के फर्स्ट पेज पे आ जाता है, देयर इज़ नो टैब देयर। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कोलन, तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर हमारा कर्सर क्या जा रहा है, एक टैब आके जा रहा है, दैट इज़ वी आर हैविंग वन स्पेस। यही तो पाइथन की स्पेशलिटी है, आपको ये झंझट ही नहीं है कुछ कि कोई सिंटैक्सेस को प्रॉपरली लिखना है, पाइथन ही आपको ऑटोमेटिकली देता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ पाइथन, दैट्स वाई द पाइथन इज गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलरिटी। ओके, हमें अभी क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है, प्रिंट द, डबल कोट्स में लिख रहे हैं तो वही लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। प्रिंट द गिवन नंबर इज व्हाट, इवन, दैट्स इट। अदरवाइज हम लोगों को क्या करना है, अदरवाइज हम लोगों को क्या करना है, एल स्टेटमेंट लिखना है। अभी आप लोग देखिए, अगर ये इंडेंटेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो क्या होगा, एल्स प्रिंट द गिवन नंबर इज ऑड। ओके, तो देखते रन करके, यहाँ पर एरर आने वाला है डेफिनेटली, बट कैसे देखते हैं, देखिए एल्स इनवैलिड सिंटैक्स। देखिए क्या बोला हम लोग, क्या बोला था मैंने अभी आपको, कंडीशन लिखते हो तो उसके बाद क्या होना चाहिए, पहले नहीं क्लियर होते, ठीक है, कंडीशन लिखते हो तो उसके बाद टैब होना चाहिए। अभी हमारी कंडीशन कहाँ पर ख़त्म होगी, देखिए अगर गिवन नंबर इज इवन है तो कंडीशन यहाँ पर ख़त्म होती है ना, तो अगला टैब क्यों है, ये एल्स जो है आपकी क्या है, सेपरेट कंडीशन है। सो यू शुड नॉट मिक्स दिस एल्स विद दिस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, देख लीजिए अभी एल्स को टैब दे दिया, अब यहाँ पर डबल टैब हो गया। डबल टैब का मतलब यहाँ पर एरर आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये लूप अंडर लूप होता है, दिस इज कॉल्ड एज द लूपिंग। देखिए ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, उसने टैब दे दिया। सो वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट, क्लियर द शेल एंड रन द प्रोग्राम। ठीक है, एंटर द नंबर, डाल दीजिए कोई भी नंबर। Okay, sometimes systems is getting slower or sometimes net is having problem, that but don't worry, what you have to do, you have to clear this shell and then rerun the program again, that's it। देखिए हमने नंबर क्या डाला था यहाँ पर 20, राइट, एंड 20 इज व्हाट, आप लोगों को तो पता है 20 इज व्हाट, द गिवन नंबर इज इवन। ओके, सो वी विल ट्राई टू रन इट अगेन, क्लियर द शेल। अभी ऑड के लिए भी ट्राई करना है ना भाई, वो कैसे भूल सकते हैं, और हमने डाल दिया 30, द गिवन नंबर इज ऑड, दैट्स इट, इतना सिंपल है ये।
जस्ट आपको क्या करना है, लॉजिक ठीक से लगाना है, और व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द प्रोग्राम एंड syntaxes properly. That's okay. I hope you understood this program, that is how to find out whether the given number is even or odd. So नेक्स्टली हम लोग क्या चेक करेंगे, अभी थोड़ा सा नेस्टली फिल्स का कर लें, ठीक है कर लेते हैं. अभी क्या करते हैं हम लोग, फाइंड आउट करते हैं वेदर गिवन नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो. ओके, उसके पहले हम लोग लॉजिक डिफाइन कर लेते हैं. वेदर गिवन नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो. तो चलिए अभी यहाँ पर क्या करना है हमें, अब यूजर से नंबर एंटर करके ले आप, या आप खुद ले, नो प्रॉब्लम. हाउ टू फाइंड आउट विद द गिवन नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो. इट्स लॉजिक इज वेरी सिंपल. अगर कोई नंबर ग्रेटर देन जीरो है, अभी हम लोगों ने हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर कोई नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो वो क्या हुआ, पॉजिटिव. अगर वो कोई जीरो से कम है तो वो क्या हुआ, निगेटिव. और अगर कोई नंबर इक्वल्स टू जीरो तो क्या, वो जीरो ही है, कोई नंबर हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो इसके लिए हम करना है लॉजिक. फिर से ले लीजिए, नंबर इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, या फिर आप फ्लोट भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं इंट के लिए ले रही हूँ. इनपुट एंटर द नंबर, दैट्स इट. ओके, नंबर एंटर कर लिया भाई आप लोगों ने. अभी नेक्स्ट क्या करना है, लॉजिक लगाना, तो लगा लो. किस बात की देखें, इफ नंबर is greater than 0 then what, कोलन मत भूलना, कोलन बिल्कुल मत भूलना. अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हुआ, क्या हुआ, वो नंबर हो गया पॉजिटिव. ओके, थोड़ा सा टाइपिंग का प्रैक्टिस भी कर लिया करो. एल एफ, ओके स्पेलिंग. अभी ये देखिए यहाँ पर बाय डायरेक्टली एरो दिखा रहा है. अभी मैं एक एक्स्ट्रा ए लिखा, तो क्या कर रहा है, उसको एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहा है. हमको कीवर्ड्स चाहिए, कीवर्ड्स के देखिए, कीवर्ड्स चाहिए तो क्या करना है अभी, एल एफ नंबर इज लेस दैन 0, तो क्या करना है हम लोगों को, प्रिंट the given number is negative. Oh. And lastly क्या करना है, else. else क्या हुआ, अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है तो क्या हो गया, जीरो हो गया. प्रिंट the given number is 0. That's it. Okay, we'll try to run it. Hopefully it will run. If not, we'll try to resolve the errors. एरर आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं लेने का. सिंपली क्या करना है, लाइन टू लाइन अगर आपका प्रोग्राम चेक करो, कोई एरर है तो वो फाइंड आउट करो पहले, रन करके देखते हैं. ओके, यहाँ पर क्या हो गया है, देखिए, अरे हम तो जीरो ही डालना भूल गए. नंबर है किससे, जीरो, लेस दैन, द नंबर इज लेस दैन 0. देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, अगर कोई एरर आता है तो देख लो, वहाँ पर आपको लाइन दिख जाती है डायरेक्टली कि कौन सा एरर है. ओके, क्लियर इट. ओके, चलो कौन सा नंबर डालते हैं, 12. द गिवन नंबर इज पॉजिटिव. ओके, पॉजिटिव तो आ गया. अभी नेगेटिव के लिए देखते हैं. द गिवन नंबर इज सपोज -98. ओके, अगर ऐसे हो रहा है, कभी कभी एचएल की भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, फिर से इसको क्लियर करना है और फिर से रिरन करना है. लेट्स सी, द गिवन नंबर इज व्हाट, नेगेटिव. ओके, सो कभी कभी क्या होता है, आपका लॉजिक सही होने के बाद भी क्या होता है, कभी कभी एरर आता है. सो फिर से रिरन करके देखो, अगर कोई एरर है तो वो निकाल लो, अगर नहीं है तो सिंपली प्रोग्राम रन हो सकता है आपका. कभी कभी सिस्टम स्लो हो जाती है, आपका रैम स्लो होता है, या फिर कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है. सो डोंट वरी अबाउट इट. सो नेक्स्ट कर ले पापा, क्या रह गया हमारा, 0. द गिवन नंबर इज 0. यस, द प्रोग्राम इज रनिंग एब्सोल्युटली. ठीक
ठीक है, सो अब हम लोगों ने फाइंड आउट करिए कि क्या करना है, वेदर द गिवन नंबर इज पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द मैक्सिमम आउट ऑफ 2 और 3 नंबर्स। उसके लिए पहले क्या करना है, हमको नंबर्स लेने हैं, तो ले लो। ओके, अब यहाँ पर कमेंट क्या डाल दे रहे हैं, प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज व्हाट, नो, प्रोग्राम टू चेक द मैक्सिमम आउट ऑफ गिवन नंबर्स, गिवन 2 नंबर्स। ठीक है, पहले 2 नंबर्स के लिए देख लेते हैं सिंपल, उसके बाद क्या कर लेंगे, हम 3 नंबर्स के लिए देख लेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, 2 नंबर्स लेने, राइट। सो एंटर फर्स्ट नंबर एंड एंटर सेकंड नंबर। num1 इज इक्वल्स टू एंटर द फर्स्ट नंबर एंड num2 इज इक्वल्स टू int input enter the second number। ओके, यूजर से 2 इनपुट ले लिए, पहला नंबर दूसरा नंबर। अभी क्या करना है, सिंपली लॉजिक लगा दो, सिंपल है। इफ अब हम लोगों को क्या करना है, num1 is greater than num2, this is what we are going to do, we are going to print okay first number is greater than second। टाइप करते हुए थोड़ा सा ध्यान कर लो, प्रैक्टिस हो जाती है। एल्स अब यहाँ पर इफ एल्स की जरूरत नहीं, क्योंकि क्या है, 2 ही नंबर है। अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर नहीं तो ऑब्वियसली क्या होता है, सेकंड नंबर ग्रेटर आ जाता है, दैट्स इट। एल्स लिख दो फिर, एल्स प्रिंट सेकंड नंबर इज ग्रेटर दैन फर्स्ट। ओके, चलो फिर अभी एग्जीक्यूट कर लेते हैं भाई, शेल क्लियर कर लो, प्रोग्राम रन करते हैं। फर्स्ट नंबर लिया हमने 54, सेकंड नंबर लिया हमने 45। कौन सा बड़ा आना चाहिए, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड, 54 इज ग्रेटर देन 45। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, यूजर को जनरली ढूंढना पड़ता है, फर्स्ट नंबर कौन सा दिया था भैया हमने, 45 या 54, कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, अभी थोड़ा सा आपका लिखने का जो स्टैंडर्ड है या फिर लिखने का जो टेक्निक है थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अभी हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट नंबर कौन सा है वो हमको लिखना है, दैट इज फर्स्ट नंबर 54। अभी वो कैसे लिखने का है, डायरेक्टली उसकी क्या करो, वेरिएबल प्रिंट कर दो। फर्स्ट नंबर इज क्या है वेरिएबल फर्स्ट नंबर का, num1 कॉमा इज, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर दैन सेकेंड, राइट। अभी सेम हमें क्या करना है, उसके लिए भी सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा ना सोफिस्टिकेटेड, जितना आप कोड को कर सकते हैं उतना कीजिए, क्योंकि क्या होता है इससे यूज़र की जो रीडेबिलिटी होती है वो अच्छी रहती है, क्योंकि यूज़र समझ नहीं पाता कभी कभी कि क्या कर रहे हैं, या फिर आप लोग ग्रुप में कोड्स कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपके पार्टनर के साथ शेयर कर रहे हो, तो उसको भी पता चलना चाहिए ना कि आपने क्या लिखा है। ट्राई टू रन इट, वी विल सी व्हाट विल हैपन। ओके, सिस्टम इज गेटिंग हैंग, डोंट नो वेरी। पहला नंबर लिया हम लोग यहाँ पर 12। OMG, ओके देखिए यहाँ पर सिस्टम फिर से हैंग हो गई, फिर से हम लोग रन करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 14, हाँ, एंटर सेकेंड नंबर हम लोग लेते हैं 7। कौन सा बढ़ाना चाहिए देख लो भाई, फर्स्ट नंबर 14 इज ग्रेटर दैन सेकेंड। ओके, सेकेंड क्या क्या रह गया अभी हमारा, num2 ही था ना यहाँ पर, ठीक है। तो फिर वो
सो हो गया। अभी क्या करना है नेक्स्ट हमें, फिर से एक बार रन करते हैं, देखते हैं। एंटर द फर्स्ट नंबर 12, सेकेंड नंबर 45। ओके, सेकेंड नंबर 45 इज ग्रेटर देन फर्स्ट। अरे भाई फर्स्ट नंबर कौन सा है वो भी लिख दो ना भाई। चलो लिख देंगे फिर। फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर दैन सेकेंड, दैट इज व्हाट, नंबर 2, एंड सेकेंड नंबर इज ग्रेटर दैन नंबर 2। Clear it and write. ओहो, एरर क्या आ गया, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, गलती से हमारा कॉमा मिस हो गया। देखिए यहाँ पर सीधी सीधी लिख रहा है, वो क्या कर रहा है, इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, और यहाँ पर उसने लाइन भी दी थी। यहाँ पर क्या हो गया है, कोमा नहीं आया। वेरिएबल को हमने स्ट्रिंग से सेपरेट नहीं किया। इंटीजर को स्ट्रिंग से सेपरेट करेंगे तभी पता चलेगा ना कि वो इंटीजर है। नाउ रन इट। इसे कहते हैं हम हैंग हो गया, क्या करिए, फिर से रन करो, कोई बात नहीं। ओके, 456 इज ग्रेटर दैन सेकेंड। सेकेंड नंबर इज वॉज 367। अभी आप और लिख सकते हैं सेकेंड नंबर 367। ओके, सो अभी क्या करते हैं हम लोग, दो नंबर्स के लिए हो गया। अभी सेम लॉजिक हमको क्या करना है, तीन नंबर्स के लिए इम्प्लीमेंट करना है। ओके, सो उसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा नया एक कीवर्ड ऐड करना है, वो देखना है हमें। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हमको तीन नंबर्स देने हैं, राइट। सो अभी ये पहला है, रहने देते, गिवन 3 numbers। ओके, सो एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंड num3 इज इक्वल्स टू एंड। ओके, तीन नंबर से ले, राइट, तो फिर ले लो ना। एंटर दी थर्ड नंबर। ओके, अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, कंपैरिजन किया था दो नंबर्स में। अभी हमें पर यहाँ पर दो नंबर्स नहीं है, ध्यान रखिए, यहाँ पर कितने, तीन नंबर्स हैं। तो फिर कैसे करने हैं वो देखो। इफ़ नंबर, अभी नंबर 1 ये तीनों में से किससे ग्रेटर रहेगा, ज़रा सोचिए। अगर नंबर 1 नंबर 2 से भी ग्रेटर है और थर्ड नंबर दैट इज़ नंबर 3 से भी ग्रेटर है, तो फिर क्या हुआ, वो द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन दी ऑल थ्री नंबर्स, दैट इज अमंग दी ऑल थ्री नंबर्स। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 3, देन इट विल बी व्हाट, दी नंबर 1, दैट इज फर्स्ट नंबर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे। देखिए अभी इसके लिए हमें क्या करना है, इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, दैट इज गिवन नंबर, एंड द नंबर 2 इज ग्रेटर देन num3, ऐसे लॉजिक लिख सकते हैं क्या, देखिए नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, अगर नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा है और नंबर 2 नंबर 3 से बड़ा है, तो क्या होता है, नंबर 3 छोटा होता है। सो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं लिखने के। यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन num2, दैट इज इफ num 1 इज ग्रेटर देन num2 एंड num 1 इज ग्रेटर देन num3, देन व्हाट, द फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द फर्स्ट नंबर दैट इज num 1 इज ग्रेटर देन ऑल। ओके, सिंपल लिखते रहे, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन ऑल हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट कंडीशन आइडेंटिफाई करनी है। अभी इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एल इफ लिखना पड़ेगा भाई, लिख लो फिर एल इफ। अभी क्या करना है हमें, num 2 इज ग्रेटर दैन num3 एंड num 2 इज ग्रेटर दैन num 1। तो क्या करना है हमको, प्रिंट करना है, प्रिंट सेकेंड नंबर num 2 is greater than all। ओके, लिख लीजिए क्या क्या मिसिंग है यहाँ पर। हाँ, कॉमा इज मिसिंग, लिख दीजिए। और लास्टली क्या करना है हम लोगों को, एल स्टेटमेंट। अभी एल स्टेटमेंट में क्या लिखना है, थर्ड नंबर, कौन सा था वो, थर्ड नंबर num3 इज ग्रेटर देन ऑल करते हैं।
चलो चलो लिखो जल्दी जल्दी। आओ। अभी यहाँ पर आप लोग देखिए एक नया है, ठीक है, दैट इज this is Python's operator and this is going to check the condition and it is going to return true if both the conditions are true। यहाँ पर हमने क्या किया, nested conditions लिए। कौन सी conditions लिए हैं? True conditions लिए। Firstly we have checked num1 with num2 and num1 with num3। The next one is we have checked num2 with num3 and num2 with num1 and lastly अगर ये दोनों condition satisfy नहीं हो रही तो by default कौन सा आता है? Obviously num3 is greater आता है, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं हम? एड ऑपरेटर्स बोलते हैं। और ये क्या करते हैं? हमेशा ट्रू वैल्यू देते हैं अगर बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इफ नॉट देन इट विल रिटर्न दी फॉल्स, दैट इज वो आपके क्या करेगा? कंडीशन रन नहीं करेगा। वैसे इसके साथ क्या है? एंड के साथ एंड है और नॉट है। तो और जो है वो क्या करता है? और क्या करता है? अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो क्या करता है? ट्रू देता है। अगर यानी कि अगर सिर्फ नंबर 1 इज ग्रेटर है देन नंबर 2 देन इट विल रिटर्न दी ट्रू। अगर ये नेक्स्ट कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग देन डजंट नीड ऐड ऑन, क्योंकि और क्या करता है? कोई एक ही कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू आंसर दे देता है एंड लास्ट वन इज नॉट। सो नॉट क्या करता है? अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो आपको क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा। ओके, सो विल ट्राई टू रन विल सी इफ देयर इज एनी एरर। ओके, कहाँ पर तो कुछ तो मिसिंग हो गया है। क्या हो गया? देखिए यहाँ पर डबल कोट्स आ गए हैं, स्ट्रिंग का एरर आ गया है, एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। हम लोगों ने क्या किया? लाइन के एंड नहीं कर दिए क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा कोड दे दिया यहाँ पर, इसकी वजह से ये एरर आ गया है, ठीक है। num1 num2 एंड num3। ओके, सो वी विल ट्राई टू रन। ओके, एंटर द फर्स्ट नंबर। हम लोगों ने क्या कर लिया? 10, सेकेंड दे दिया 30 and lastly 50। okay, 50 is greater than all, output is running correctly, no problem at all। the next one is suppose हम लोगों ने फर्स्ट वाला पढ़ा लिया 68, जल्दी जल्दी कर लो, 42 and 9। कौन सा आ गया? फर्स्ट नंबर 68 is greater than all। ओके, अभी सेकेंड नंबर ग्रेटर करके देख लेते हैं हम लोग। 78, 98 and 2। second number 98 is greater than all। okay, it is absolutely running right। okay, so there is no problem at all। so abhi you have to try more and more practices on the if else statements। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा और उतना आप परफेक्शन होते जाओगे। सो जस्ट ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम्स repeatedly and try to firstly build up the logic and then I go to the actual statements or actual codes। so moving forward हम लोग अभी क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेटमेंट चूज करेंगे, दैट इज कहाँ पर गए हमारे? कोई प्रॉब्लम नहीं, उड़ा दिया था। इफ एल्स हो गए भाई, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है? वाइल स्टेटमेंट। ओके, सो वाइल स्टेटमेंट का पहले सिंटैक्स देख लेते हैं और फिर उसका एक्चुअल यूसेज देख लेते हैं। So syntax of while statement is what? Look, while sum like is condition, if condition is true then what? Execute statements। और ओके, ये तो कंपल्सरी स्टेटमेंट होगा। अगर while लिख रहे तो आपको एक कंडीशन तो देनी पड़ेगी। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू राइट इट एज कंपल्सरी। हो गया? while कंडीशन की ये कंपल्सरी स्टेटमेंट है। और इसके अलावा एक क्या है? while we will write condition is true। ओके, ये वाला हो गया हमारा कंपल्सरी। अगर इफ एल्स की तरह ही अगर while को भी स्टेटमेंट्स फॉल्स मिल रहे तो क्या करना है? while कंडीशन इज फॉल्स तो क्या करना है हमें? else and statement। ओके, so you can use whether simple while loop or while with else, depends on your requirement as I said before। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं, सो यू विल हैव द बेटर आइडिया अबाउट इट। सो क्या करते हैं? शेल क्लियर करते हैं, हमारा पूरा प्रोग्राम क्लियर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो अभी हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर।
मैथ्स में हम लोगों को क्या बोलते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन यानी टेबल्स याद रहने चाहिए, तो ये आपका मैथ परफेक्ट है। ओके, स्कूल में तो याद रहते नहीं थे ज़्यादा बच्चों को। तो चलिए प्रोग्राम में देखते हैं कि लॉजिक तो रन होता है या नहीं हमारा। That is, if you have to print the table of 2, you have to print the table of 4, 30, 31 and so on. So, given नंबर का टेबल हमको टेबल कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, नंबर ले लो, नहीं है तो ले लो, किसके क्या क्या वेटिंग फॉर व्हाट, इनपुट, enter the number for which multiplication table you are going to print. ओके ठीक है, ये हो गए। देन उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, एक्चुअल लॉजिक लगाना है। अभी देखिए एक्चुअल लॉजिक के लिए हमको क्या करना है, पहले वाइल स्टेटमेंट समझना है। सो अभी हम लोगों को क्या करना है, लॉजिक लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ले लिया, तो नंबर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक होता है, सपोज 2 ले लिया, सो क्या होगा यहाँ पर 2 into 1 क्या आता है 2, देन नेक्स्ट वन इज 2 into 2 क्या आता है 4, देन 2 into 3 क्या आता है 6। ओके, सो देखिए अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, 2 2 2 अप टू 10, पर यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू है 1, देन उसके बाद 2, देन उसके बाद 3, देन उसके बाद 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक 10 तक करनी है, क्योंकि 2 10s are 20। सो उसके लिए अभी लॉजिक लगाओ। देखिए अभी लॉजिक कैसे लगाते हैं हम लोग, सो इजी। हमको क्या कर लेना है, टेम्परेरी वेरिएबल लेना है, जहाँ पर हमारा क्या रहेगा, एक काउंटर रहेगा। अभी हम लोग जो लिख रहे हैं 1 2 3 क्या है ये हमारे, वी कैन कॉल इट एज द काउंटर विच विल बी एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीमेंट बाय 1 एट अ टाइम। ओके, सो काउंटर के लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको i इज इक्वल्स टू 0 0 से स्टार्ट करते हैं। नाउ हमें यहाँ पर एक्चुअल कंडीशन लिखनी है। सो कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, सो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है, इनिशलाइज करना है, ठीक है। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी i इज इक्वल्स टू 0 इनिशलाइज करना है। अभी हमको यहाँ पर लिखनी है वाइल की कंडीशन। ओके, सिंपल लिख दो, कहाँ तक लिखना है हमने, 2 10s are 20, राइट। सो लिख दो वाइल i इज लेस देन इक्वल्स टू 10। क्या करेंगे हम लोग, अभी डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 एंड सो ऑन। सो क्या करेंगे, नंबर क्या लिखा है हमने 2, सपोज नम इंटू आई, यहाँ पर क्या करना है हमको, अब यहाँ पर एक्चुअली लॉजिक लगाना है। लाइक यहाँ पर वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यहाँ पर क्या करना है, आई को हमें इंक्रीमेंट बाय 1 करना है, आई प्लस 1। ओके, एक्चुअल इंक्रीमेंट, जैसे कि हमको क्या करना है 2 into 1 2 into 2 2 into 3, इसके लिए इंक्रीमेंट ऑफ आई। चलो ये तो हो गया इंक्रीमेंट ऑफ आई एंड प्रिंट इट। ओके, सो वी विल ट्राई टू रन इट वेदर इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट करेक्टली और नॉट। इतना सिंपल सा लॉजिक लगाना है बस आपको, और बाकी कुछ नहीं। सपोज 2 इन किया था ना, यस इट्स एब्सोल्युटली दैट इज what it is going to do, it is going to print। okay, so यहाँ पर हमने काउंटर क्या किया था, 0 से लिया था, so we can start it with the 1 to avoid this 0। okay, so we can write it like that। देखो फिर से हैंग हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं, यस इट इज रनिंग करेक्टली। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी को ज़रा डिफरेंटली रन करते हैं। ओके, एक्चुअली मुझे किसे चाहिए आउटपुट, इट इज़ 2 into 1 is equals to what 2। that is I have to see the actual table here, so we will try to execute the actual table here, no problem at all। so इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रिंट का जो स्टेटमेंट है ठीक से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इट इज़ यू हैव टू राइट इट सोफिस्टिकेटेड। okay, so just try to write it here। okay, clear the shell, take the cursor here,
एंड वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट। तो लिखते हैं अभी यहाँ पर एक्चुअल लॉजिक अपना। सो अभी क्या करना है, हमको नंबर को प्रिंट करना है, राइट। सो प्रिंट द नंबर 2 into 1, राइट। सो आई विल गोइंग टू प्रिंट राइट दैट 2 into what we are going to write next, I, right. 2 into I, then comma, then what we are expecting, it is equals to A is equals to what is last is your actual amount, okay. so थोड़ा सा स्पेस लिखते हैं ताकि इसे और अच्छा दिखे। ठीक है, अभी कमेंट हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर दिस शेल, वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट। अगर कोई कोमा वगैरह रह गया तो ना विल सी। पहले 2 का देख लेते हैं। यस, ओके। क्या हो गया, पहले एंटर द नंबर 2, ओके। ये 2 यहाँ पर ही रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्टली हमको क्या कर सकते हैं, इसके लिए नेक्स्ट लाइन भी कर सकते हैं। इट 2 into 1 is equals to 2, 2 into 2 is equals to 4 एंड सो ऑन अप टिल व्हाट 2 into 10, ओके। सो इतना सिंपल है, इतना इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हम लोग फिर से ट्राई करके देखते हैं। सपोज आई एम गोइंग टू एंटर 70, ओके। 17 into 1, 17 into 2 and lastly up to 17 into 3. It is running exactly and exact correctly, okay. So just अभी लॉजिक के साथ साथ अब लोग क्या कर बिल्डर को थोड़ा सा राइटिंग स्टाइल और थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन, ट्राई टू ऐड दिस मोर सोफिस्टिकेटेड कोड सो दैट आप ये देख के आराम से पता चल जाता है कि क्या है मल्टीप्लिकेशन का टेबल, ओके। सो इसी तरह हम लोग कर सकते हैं। अभी इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम देख लेते हैं, थोड़ा सा अभी डीप में जाते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ नंबर, ओके। सो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लॉजिक देखना पड़ेगा। अगर कोई नंबर है, सपोज हम लोगों ने क्या कर लिया, पहले लिख लेते हैं प्रोग्राम टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ अ नंबर। सो रिवर्स ऑफ नंबर के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। सपोज आई एम टेकिंग नंबर 1 2 3। अगर इसका रिवर्स को क्या करना है, हमको प्रिंट करना है, तो फिर क्या है इसका रिवर्स, 1 2 3 का रिवर्स है 3 2 1, राइट। सो अभी इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। सो आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द प्रोग्राम एंड आई विल एक्सप्लेन लॉजिक व्हेन वी आर राइटिंग द कोड। सो फर्स्ट टाइम इज व्हाट, नंबर ले लो जिसका हमको रिवर्स निकालना है, इंटीजर ले ले तुम, इनपुट एंटर द नंबर, नंबर ले लिया है हमने। तो अभी क्या करना है, लॉजिक लगाना है। लॉजिक कैसे लगाएंगे, देखिए अभी रिवर्स प्रिंट करने के लिए हमको क्या करने पड़ेगा, पहले वो नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा बाय 10 से, और उसका रिवर्स प्रिंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका रिमाइंडर लेना पड़ेगा, ओके। सो अभी रिमाइंडर कैसे लेते हैं हम लोग, नम मॉड 10 से, उसका जो रिमाइंडर है मॉड्यूलर से हम ऑपरेटर लेंगे और डिवाइड बाय 10 करेंगे। तो ये लॉजिक के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिख लेते हैं जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नम स्टोर करेंगे। आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। सो रिवर्स को पहले से इनिशलाइज कर लेंगे टू 0। अभी हम लोगों को क्या करना है, वाइल, देखिए वाइल नंबर इज ग्रेटर दैन 0, यानी कि जब तक नंबर ग्रेटर दैन 0 हम लोगों को क्या करना है, अभी यहाँ पर एक्चुअल रिवर्स का लॉजिक लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं हम। मैंने क्या बोला था, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अभी सिंपल एक नंबर ले लेते हैं। यहाँ पर अभी नंबर इज माई 1 2 3। सो हमें क्या करना है, ये जो लास्ट डिजिट है 1 2 3 का 3 जो है वो क्या करना है, फर्स्ट पोजीशन पे लेना है यहाँ के। दैट हमको यहाँ पे, यहाँ से यूनिट से हटा के उसको क्या करना है, इसके हंड्रेड्स के प्लेस में रखना है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए 1 2 3 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे। तो फिर उसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और वो रिमाइंडर हमको क्या करना है, फर्स्ट प्लेस में लेना है। दैट इज़ व्हाट लॉजिक वी आर गोइंग टू राइट हियर, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम गिवन नंबर को किसके डिवाइड करेंगे, 10 से, और उसका रिमाइंडर ले लेंगे।
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर 3 लेना है हमको। सो अभी रिमाइंडर निकालने के लिए हम लेंगे एक रिमाइंडर के लिए वेरिएबल। ओके, सो रिमाइंडर कैसे निकालना है हमको, हमने पहले भी देख चुके हैं रिमाइंडर निकालने के लिए। इसके लिए हमको क्या लगता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नम मॉड व्हाट 10। ओके, सो फिर 1 2 3 को हम क्या करें, मॉड्यूलस ऑपरेटर से ले लिया इसका रिमाइंडर पहले 3। ओके, अभी रिमाइंडर में क्या वैल्यू आ गई आपकी 3। सो अभी उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स में 1 by 1 डिजिट्स लेने हैं, फ्रॉम 3 then 2 and then 1। ओके, सो रिवर्स इज इक्वल्स टू, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लॉजिक कर लेंगे इम्प्लीमेंट। देखिए रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। अभी हमारा रिवर्स क्या इनिशियलाइज्ड है 0, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, 0 इंटू 10 क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस रिमाइंडर क्या वैल्यू आ गई आपकी 3, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखिए, आपके रिमाइंडर रिवर्स में क्या हो गया 3 आ गया, राइट। फिलहाल रिवर्स में 3 ही, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर को डिवाइड बाय 10 करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अभी लॉजिक लगाते वक्त आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखकर एक बार सोच लीजिए। अगर 123 को डिवाइड बाय 10 करेंगे, यहाँ पर हमने फ्लोट तो लिया नहीं है, तो क्या रह जाता है 12.3। ओके, वी आर टेकिंग इट एज इंटीजर, सो जस्ट स्किप दी 3, क्या हो गया 12 रह गया। अभी नंबर में कौन सी वैल्यू आ गई 12 आ गई। देखिए अभी नंबर हमारा क्या होते जा रहा है, डिक्रीमेंट होते जा रहा है। ओके, अभी ये क्या होगा, व्हाइल लूप कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते जाएगा। देखिए अभी नंबर में कौन सी वैल्यू आ गई 12, 12 is greater than 0, obviously then repeat this procedure again. That's why while is going to execute your logic unless and until the condition is true or false, depends on your condition given. सो अभी यहाँ पर फिर से हमको क्या करना है, रिमाइंडर क्या लगेगा, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू नम मॉड 10। ओके, अभी देख लीजिए हमारा नंबर कौन सा आ गया है 12। ओके, अभी 12, सॉरी स्पेसेस नहीं देने, इंडेंटेशन नहीं भूलना है हमको। 12 मॉड 10 क्या आ जाएगा, लास्टली रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। अभी रिवर्स में वैल्यू क्या है, देखिए अभी नेक्स्ट लॉजिक रन करना है। रिवर्स में क्या लॉजिक है, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, 3 इंटू 10 कितने हो गए 30 प्लस रिमाइंडर कितने हो गए 32। आई विल रिपीट इट अगेन। देखिए यहाँ पर 3 इंटू 10 प्लस 2, आउटपुट क्या आ गया आपका 32। वो क्या हो गया रिवर्स में स्टोर हो गया। देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 को 3 2 1 करने के लिए इतनी सारी स्टेप्स लेनी है। दिस इट लुक सो सिंपल, बस सिर्फ लॉजिक डेवलप कीजिए भाई, लॉजिक डेवलप करिएगा तो सब हो जाएगा। सो 3 2 आ गया। अभी हम लोगों ने क्या कर लिया, नंबर को नम बाय 10 कर लिया। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, नंबर क्या है हमारा भाई, देख लो 12 रह गया, राइट। 12 को 10 से डिवाइड कर लिया, अभी क्या रह जाएगा यहाँ पर ओनली 1 रह गया, राइट। सो अभी 1 मॉड 10 क्या आ गया रिमाइंडर 1। और उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए रिवर्स में पहले कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है, रिवर्स इज इक्वल्स टू अभी नाउ 32। ओके, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर 32। कर लो कैलकुलेशन, देखते 32 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर कौन सा है अपना 1, 32 10 आर 320 प्लस 1 क्या हो गया, आ गया आपका आउटपुट 321। नाउ अभी यहाँ पर क्या लूप अब तक खत्म नहीं हुआ है, स्टिल वी आर इन व्हाट व्हाइल लूप, राइट। अभी क्या करेंगे, नम इज इक्वल्स टू नम बाय 10। नंबर क्या है अपना 1 बाय 10। 1 बाय 10 की वैल्यू क्या आती है, 0 से बड़ी होती है छोटी होती है, ऑब्वियसली छोटी होती है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली
इसको अभी फिर से वाइल लूप में कंडीशन चेक करेंगे, राइट। अभी यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, नंबर इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज टोटली फॉल्स हियर। सो अभी क्या करेगा, ये जो वाइल लूप है पूरा खत्म हो जाएगा, हमारा जो एग्जीक्यूशन है यहीं पर रुक जाएगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या करना है, हमको सिंपली वाइल लूप के बाहर प्रिंट करना है, प्रिंट the reverse of the number is what, rev. We'll try to run it. 1 2 3. Okay, so there is something error here. ओके सो क्या हो सकता है एरर, थोड़ा सा सारा सोचिए। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किया है, 1 by 1 ओके लॉजिक डिक्लेयर कर दीजिए पहले एंड वी विल ट्राई टू रन इट। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, ओके नंबर इज ग्रेटर देन 0, रिमाइंडर इज इक्वल नम नॉट 10, रिवर्स इज डिवाइडेड टू 10 प्लस रिमाइंडर, ओके नम इज इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। ओके सो एरर कहाँ पर आ गया, देखिए जनरली यहाँ पर क्या करता है, सिंपल डिवीजन करता है वो बाय यूजिंग द सिंगल डिवीजन ऑपरेटर, और क्या कर देता है ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देता है। और हमें क्या चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं चाहिए, हमको क्या क्या चाहिए, उसका फर्स्ट डिजिट चाहिए जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है। सो उसके लिए क्या है हमारे पास, डबल डिवीजन है। ओह सॉरी इट इज गेटिंग हैक्ड। ओके सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या करता है, कर देता है हमको डिवीजन दे देता है without floating point, right? That's why we are getting output infinity, because it is going to take the total infinity value here. Okay, so try to clear it, run it, 1 2 3 and yes the reverse of the number is 3 2 1, absolutely running. Okay, अगर कोई error आता है तो फिर just try to think and try to execute where is the actual error. अगर आपको फिर भी नहीं मिला तो there are so many sources to find out, you can search on the net also. Okay, so I will type around 4 5 6. Okay, hanged again. होता है भाई, होता है। चलो रन हो जाओ। अब लोग हम लोग डाल जाएंगे नंबर 5 6 8। ओके फिर से अभी हैंग हो, यस 8 6 5। ओके नो प्रॉब्लम मैटर, डोंट गेट नर्वस इफ योर आउटपुट इज नॉट गेटिंग, कभी कभी सिस्टम हैंग होने की वजह से ऐसा हो सकता है। अभी देख लीजिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, यही रिवर्स नंबर को थोड़ा सा बस थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। और क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे वेदर द गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। ओके सो इसको ही मॉडिफाई करेंगे टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ द नंबर एंड टू चेक whether given number is palindrome or not। पहले उसके लिए क्या करेंगे, पैलिंड्रोम का लॉजिक समझाएंगे। देखिए पैलिंड्रोम वो नंबर होता है अगर वो नंबर और उसका रिवर्स दोनों भी सेम रहे, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैलिंड्रोम नंबर कहते हैं। अभी हम लोग देखते नंबर का तो जो है यहाँ पर क्या होता है, डिविजन की वजह से नंबर एरेज हो जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक टेम्परेरी वैल्यू जो मैंने पहले लिया था उसमें क्या करेंगे हम लोग, नंबर की वैल्यू स्टोर करेंगे। अभी हम लोग ठीक है प्रिंट करके देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू इन टेम, वैल्यू ऑफ टेम is and print the 10. Okay, so clear it, run. Okay, value of temp is 1 2 3 and the reverse of number is 3 2 1. Okay, so हम लोगों को क्या करना है, palindrome number means what, palindrome number is a number whose original number and reverse number both are same. Okay, that is suppose I am going to write 1 1 1, reverse is 1 1 1, 1 0 0 1, reverse is 1 0 0 1.
दैट इज नथिंग बट पैरेंटम नंबर. सो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिया है, उसमें नंबर सेव किया है. क्यों किया है, अब वही हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, नंबर को मॉडिफाई किया हुआ है. अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर यहाँ पर प्रिंट करेंगे तो देखिए आउटपुट क्या आता है, प्रिंट ओरिजिनल नंबर इज no. Okay, clear the shell, run it, enter the number 1 2 3. देखिए क्या आ गया आउटपुट, ओरिजिनल नंबर इज 0. वाई, वी हैव डिवाइडेड दिस नंबर बाय 10. दैट्स वाई वी आर गोइंग टू सेव दिस ओरिजिनल नंबर इन सम temporary variable. Okay, so just try to clear it. The value of temp I am also going to clear because you know the actual thing why we are going to use temp. So अभी पैरेंटम नंबर क्या है वो और उसका रिवर्स क्या होंगे, दोनों सेम होंगे. ठीक है, तो फिर अभी क्या करना है, हमको चेक करना है. क्या चेक करना है, वेदर गिवन नंबर इज पैरेंटम नंबर. नाउ इफ, अभी कैसे चेक करेंगे, इफ नंबर तो नहीं लिख सकते हम, क्यों, क्योंकि उसमें वैल्यू है 0 ऑलरेडी. इफ रिवर्स इज इक्वल्स टू ओरिजिनल नंबर कहाँ पर स्टोर किया है हम लोगों ने, ओरिजिनल नंबर स्टोर किया है हमने टेम्पररी वेरिएबल में. temp is used to store original number. That's it. If reverse is equals to 10, अगर वो नंबर और उसका रिवर्स सेम है तो क्या हुआ, the number is palindrome, else print the number is not a palindrome. That's it. So just hopefully it will run. If not, we will try to execute the errors. Okay. Yes, the reverse of the number is 3 to 1. The number is not palindrome. Obviously 1 to 3 is not palindrome. 1 to 3 का रिवर्स क्या आ गया, 3 to 1. So ऐसा नंबर डाल देते हैं जो पैलिंड्रोम है. 1 1 1. Yes, the reverse of number is 1 1 1. The number is what, palindrome. 1 0 0 1. Okay, the reverse of number is 1 0 0 1. That is the given number is what, palindrome. Okay, so I hope you understood this. That is how to use if loop, then how to use while loop, and in the next lecture we are going to see how to use the for loop here. Okay, so till that time I am taking leave from you, and we will meet in the next lecture. Thank you students, thank you very much. So friends, at the end of the session, let me tell you about the Unacademy Plus and Iconic subscriptions. So let me tell you first about the Plus subscription. That is, we are going to provide you the basic plan to get you started, and its advanced version is what, Iconic. Okay, just let me tell you about what is the Plus subscription. We are having the India's best educators, the interactive live classes, live tests, and quizzes also. Obviously, we are going to provide you notes using the structured courses and PDFs also. So, as per the name, the Iconic is the advanced version of the Plus. So, here what you are going to do, you are going to take your CBSE preparation to the next level, and with the most benefit of personal mentors. Yes, absolutely right. You are going to have the personal mentors here using the laid out solutions, then parent connection and study planner. Okay, it is having the same sum of the quantities or characteristics of Plus. That is, India's best educators are there, then interactive live classes, live tests and quizzes also. So we are having the mega launch Mondays also, in which we are going to start the new batches to master maths, science, SST, English and Hindi full syllabus. So this is for the CBSE class 10, which is called as the mission half yearly, in which you are going to have SST, that is social sciences, then maths, science and English with top educators. And for class 9, we can solve the numericals and NCERT exercises with the maths
and science subjects. So we are having the Unacademy batches also. That is, we are having the new batches every Monday. For the CBSE class 9 we are having the Summer Express batch. इसमें क्या है, हम लोगों को समर एक्सप्रेस बैच में मैथ्स है और साइंस है, और इसकी जो स्टार्ट डेट है वो है 7 जून 2021 and end date is 7 July 2021. So to subscribe for class 9 and get the class 10th, 11th and 12th subscription totally free. So let me elaborate about the our plus subscriptions and iconic subscriptions. So friends, here you can see that for class 9 subscription we are having two, that is iconic and plus subscriptions. Now in under the plus subscription you must choose for the 12 months subscription, that is for rupees 15,000, and for 36 months you can have the plan of 32,000. And if you go for the iconic subscription, you can have the 12 months plan for 28,000 and 36 months plan for 66,000. ओके, दिस इज़ अबाउट द क्लास 9. अगर आप लोग क्या करोगे, क्लास 9 का जो सब्सक्रिप्शन लोगे उसको आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, आपको क्लास 10, 11th और 12 का भी रहेगा. सो नाउ सेम इन द केस ऑफ क्लास 10th. ओके, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्लास 10 के सब्सक्रिप्शन को यहाँ पर क्या है, प्लस सब्सक्रिप्शन भी है और उसके साथ क्या है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है. सो अगर आप लोग क्या करते हो, क्लास 10 का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको उसके साथ क्या मिलता है, 11th और 12th का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाता है. सो इसके लिए भी हमारे पास क्या है, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18, 24 एंड 36 मंथ्स. अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के लिए जाएंगे तो आपके लिए क्या रहेगा, रुपीज़ 15,000 का रहेगा सब्सक्रिप्शन. अगर आप 36 मंथ के लिए जाओगे तो आपके लिए क्या रहेगा, 32,000 का सब्सक्रिप्शन रहेगा प्राइस. सो नाउ इन द केस ऑफ आइकॉनिक, सो 12 मंथ्स का आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो रहेगा 28,000 एंड 36 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका रहेगा 66,000. ओके, सो एज आई हैव सेड द प्लस का एडवांस वर्जन जो है वो हमारा क्या है, आइकॉनिक है. So friends, let me tell you about the Unacademy Emerge. So it is what India's largest free aptitude test for class 6 to 12th. And the test date and time are 28 June 12 p.m. So there is part case. So students, you can start the registrations for the same. So what is actually the Unacademy Emerge? So इसमें आपके लिए क्या रहेगा, 30 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस रहेंगे. देन उसमें रहेगा आपके लिए 60 मिनट्स का चैलेंज. 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कितने हैं, 60 मिनट्स है टोटली. एंड यस, एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस. एंड अगर आप लोग ये अटेम्प्ट करते हैं और प्राइज जीतते हैं तो उस वो रहेगा प्राइज वर्थ ऑफ 5 crores. सो दैट किस बार के स्टूडेंट्स, जस्ट एनरोल टू दी Unacademy Emerge and attempt for the aptitude exam. So to win the 5 crores scholarships also available for that. Win scholarships and mega prizes like MacBook, iPhone, iPads, exciting goodies, certificate, trophies and much more worth Indian rupees 5 crore. Yes, absolutely correct. So friends, just start to enroll now for this our Unacademy aptitude test. Okay, in this you are going to have the 7 lucky winners in which you are going to win the exciting goodies every day, and this offer is valid till the date of the 7 June only. So enroll now. And yes, लिंक जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दी है. सो प्लीज़ वहाँ पर जाए, लिंक को क्लिक करें और आप एनरोल करना ना भूलें. इट विल बी हैविंग द फन फॉर यू, दैट इज हैविंग द एप्टीट्यूड टेस्ट विथ नो प्रिपरेशन एट ऑल. So for our Unacademy Plus and Iconic subscriptions, there is 10% discount if you use this code. That is, my code is TDLive. So if you use this, you are going to have the 10% discount on Unacademy Plus and Iconic subscription.
Okay, and to download the app, Unacademy app, now you can go on to the Google Play Store, and if you are having iPhones, you can go to the Apple Play Store and download the app and install it. Then you can have all of these features for free. And yes, obviously, to have the plus subscription, you can also have the subscription with the flat 10% discount with my code here, as I have entered here. So that is but case, friends. Let's do it and let's crack it. Okay, so thank you for today's session. Okay, thank you students. We will meet in the next session. Till then, bye.